Hello students, how are you all? Hope you all are good and doing well at your home. Myself Diksha Rai, this is a subject teacher of science from LPM Public School which is situated in Kola Bazar, Gorakhpur. So my dear students, as you know very well, today in this video we are going to revise chapter number 7, that is parts of a plant. What is the name of this chapter? The name of this chapter is that parts of a plant. As you know, in your previous classes you have already read and done the all exercises of chapter number 7 in your homework and classwork copy, but still we are going to again to do revision of chapter number 7, that is parts of a plant, for your periodic assessment term 2. So now first what will we do? First we will get to read this chapter with the correct pronunciation. So the name of the chapter is that parts of a plant. पौधों के कितने भाग होते हैं? We see different kinds of plants around us. They are of different shapes and sizes. You have learnt about some parts of a plant in the previous class. We see different kinds of plants. हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों को अपने चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हम विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं. They are of different shapes and sizes. वे सारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के शेप्स के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं. You have learned about some parts of a plant. आप पहले भी कुछ पौधों के भाग के बारे में पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास. इसके पहले बेटा क्लास 2 में आपने साइंस की बुक में पौधों के बारे में पार्ट्स अबाउट प्लांट, अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट you have already learned. Now as you can see, unjumble the names of different parts of a plant. The label them correctly in the picture given below. Number first is toro, T-O-R-O, and the correct word is that root, and the spelling of root is R-O-O-T. And as you can see, fail, F-A-L-E, fail. This is leaf, L-E-A-F. And now we will come number 2, mast, M-E-S-T, mast. This is a stem, S-T-E-M, stem. Now we will come on number 4, lowerf. This is flower, and the spelling of flower is that F-L-O-W-E-R. And now as you can see, dove. This is bird, not dove, and the spelling of bird is that B-U-D. And this is rootif. This is not rootif, it is fruit, F-R-U-I-T. Now I am going to again revise this parts of plant. Root, R-O-T-T, root. Number 2, stem. Number 3, leaf. Number 4, flower. Number 5, bud. And number 6 is fruit. So now as you can see, this is root, and this one is a stem, and this is flower, this is fruit, and this one is leaf, and this is bud. So now you will draw a parts of plant in your PC copy. When your school will reopen, I will check that your PC. Now we are going to discuss about the first topic from the chapter is that parts of a plant and their uses. A plant has 2 main parts, the root and the shoot. एक पौधे के मुख्य 2 भाग होते हैं, पहला होता है रूट और दूसरा होता है शूट. Now as you can see, this one is the parts of plants. And this is root, and this one is shoot. The part above the ground is called the shoot. पौधे का वो भाग जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसे above the ground is called the shoot. जो ऊपर पाया जाता है उसे हम shoot कहते हैं.
इट कंसिस्ट, इसमें सम्मिलित होते हैं द स्टीम, लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। इन्हें हम शूट कहते हैं। ये सारे जब मिलते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूट। द पार्ट बिलो द ग्राउंड कॉल्ड द रूट। और पौधे का वो भाग जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसे हम रूट कहते हैं, और पौधे का वो भाग जो ज़मीन ग्राउंड के एबव पाया जाता है उसे हम शूट कहते हैं। अंडरस्टूड? Parts of a plant. Now we will discuss about parts of a plant one by one. Root. Root is the part of the plant that usually grow below the ground. There are two main types of root, tap roots and fibrous root. Root is the part of the plant. Root जो है, जड़ जो है वो पौधे का एक भाग है जो सामान्यतः वृद्धि करता है कहाँ? जमीन के अंदर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ, मुख्य तरीके से दो प्रकार की जड़ें होती हैं। पहला होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। नंबर फर्स्ट इज दैट टैप रूट एंड नंबर सेकेंड इज दैट फाइब्रस रूट. Now we are going to discuss about what is taproot. It consists of a main thick root from which small roots grow. Plants such as bean, mustard and hibiscus have taproots. Now we will discuss about fibrous root. It consists of many thin roots that appear bushy. There is no main root. Plants such as grass, wheat and onion have fibrous root. It consists of many thin roots that appear bushy. There is no main root. इनकी कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। इस प्रकार के पौधे जो हैं वो फाइब्रस रूट माने जाते हैं, जैसे कि गेहूँ, प्याज, ये सारे फाइब्रस रूट हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के क्या कार्य होते हैं, उनके क्या काम होते हैं। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ रूट आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुख्य जो कार्य होते हैं जड़ के वो नीचे दिए गए हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट हेल्प्स द प्लांट स्टे फिक्स टू द सॉइल। यह सहायता करते हैं पौधे को निश्चित रूप से ठहरने का, टू द सॉइल, कहाँ? मिट्टी के अंदर। इट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये मिट्टी से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। विच आर यूज बाय द प्लांट फॉर मेकिंग फूड। जो क्या करते हैं, जिनका प्रयोग करके पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स। कुछ पौधे जो हैं वो ज़रूरत से अधिक भोजन को एकत्र करके रखते हैं अपनी जड़ों में। सम ऑफ दीज रूट्स सच एज रेडिश। उनमें से कुछ पौधों की जड़ें, जैसे कि पौधों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड कैरेट कैन बी ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। ये सारे वो पौधे हैं जिन्हें मानव के द्वारा खाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टीम। द स्टीम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट। स्टीम जो है बेटा, जो तना है वो शूट का मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग है। द स्टीम कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्टीम मजबूत भी हो सकती है और कमज़ोर भी हो सकती है। ट्रीज सच एज द बनियन, पेड़ जैसे बनियन, ट्री एंड द पीपल ट्री, बरगद और पीपल के जो पेड़ होते हैं, हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम कॉल्ड द ट्रंक। इनकी जो जड़ें होती, इनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही मोटी होती है और मजबूत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इट होल्ड्स द ट्री स्ट्रेट एंड अपराइट। ये पकड़ के रखता है पेड़ों को बिल्कुल ही सीधे, अपराइट, अच्छी दिशा में, सीधी दिशा में। प्लांट सच एज ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड बीन हैव वीक स्टीम्स। ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जो स्टीम्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं। सच प्लांट्स आइदर ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड और नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, बॉल्स और स्टिक। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको वृद्धि करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिनके द्वारा वो वृद्धि करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ स्टीम। स्टीम के क्या फंक्शंस होते हैं। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टीम आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ मुख्यतः जो कार्य हैं स्टीम के वो नीचे दिए गए हैं। इट कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। ये पौधों को सीधा और सीधी दिशा में ले जाता है।
लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टीम। पत्तियाँ, बर्ड्स, फ्लावर, फूल और फल कहाँ उगते हैं, कहाँ वृद्धि करते हैं? स्टीम पे। द स्टीम कैरीज वाटर, स्टीम जो है वो पानी को एकत्र करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और भोजन को ले जाते हैं अलग अलग पौधों के भागों में। Steams of some plants are thicker because they store extra food prepared by the plant. Some of these steams, such as sugarcane, potato, and ginger, can be eaten by human beings. Now we are going to again discuss about some of the main functions of the steam are given below. Point number first, it keeps the plant upright and straight. Point number second, leaves, buds, flowers and fruits grow on the steam. Point number third, the steam carries water, nutrients and food to different parts of the plant. Point number four, steams of the some plants are thicker because they store food prepared by the plant. Some of these steams, such as sugarcane, potato and ginger, can be eaten by human beings. Now we are going to discuss about a leaf. As you can see, the flat surface of a leaf is called the leaf blade. जो चपटा सरफेस होता है, तल होता है कहाँ? पत्ती का, उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। एज यू कैन सी, इफ़ यू लुक एट अ लीफ केयरफुली, यदि आप किसी पत्ती को ध्यानपूर्वक देखते हैं, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लाइन्स रनिंग अक्रॉस इट, आप बहुत सारी रेखाएं पाएंगे जो क्या करती हैं? अक्रॉस रहती हैं। दिस लाइन्स आर कॉल्ड वीन्स, और उन्हीं लाइन्स को, उन्हीं रेखाओं को हम वीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीन्स कहते हैं। फंक्शंस ऑफ लीव्स, डू यू नो दैट व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ लीव्स? सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ लीव्स आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य पत्तियों के बारे में नीचे दिए गए हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, पत्तियाँ जो हैं वो पौधों के लिए क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। देयरफॉर, इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज द किचन्स ऑफ द प्लांट, इसलिए हम उन्हें जानते हैं एज द किचन्स ऑफ द प्लांट, रसोई घर के नाम से पौधों के। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट, पत्तियाँ जो हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए हम उन्हें पौधों का रसोई घर बोलते हैं। मोस्ट लीव्स अपीयर ग्रीन, अधिकतर लीव्स बिकॉज दे कंटेन ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, अधिक मात्रा में देखी जाने वाली पत्तियाँ जो हैं वो हरी दिखाई देंगी आपको, क्योंकि उनके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू एब्जॉर्ब लाइट, क्लोरोफिल सहायता करती हैं पत्तियों को क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब करने के लिए प्रकाश को। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हरी पत्तियाँ भोजन बनाती हैं पौधों के लिए किसकी उपस्थिति में? हवा, पानी और रोशनी। लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, पत्तियाँ जो हैं वो एक गैस को बाहर निकालती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड, कुछ पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो भोजन को एकत्र करती हैं, जैसे कि स्पाइनिच, कैबेज, लेट्यूस एंड कैरियोंडर लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ लीव्स ईटन बाय ह्यूमन बींग्स, ये सारी वो पत्तियाँ हैं जो मानव जाति के द्वारा क्या की जाती हैं? खाई जाती हैं। सो नाउ फ्रॉम दिस टॉपिक योर चैप्टर हैज़ कंप्लीट एंड आई होप you will do the exercise of this chapter in your I'm sorry, your chapter has remained. Now we will discuss about let's remember. Label the parts of the plant correctly, then color the part that grows under the ground in brown and above the ground in green. So now the part of the plant which is above the ground is called shoot, and the parts of plant which is under the ground is called root. So now as you can see, this is root and this all are shoot.
So now we will discuss about flowers. Most flowers are brightly colored and have a sweet smell. अधिकतम रूप में पाए देखे जाने वाले जो फ्लावर्स हैं उनका जो कलर होता है, उनका जो रंग होता है वो बहुत ही ब्राइटली चमकीला होता है एंड हैव अ स्वीट स्मेल, और उनमें मधुर थोड़ी थोड़ी सुगंध पाई जाती है. सम फ्लावर्स हैव अ प्लीजेंट स्मेल, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें प्लीजेंट स्मेल पाई जाती है. मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. अधिकतम फ्लावर ऐसे हैं जो फल के रूप में बदलते हैं. मोस्ट फ्रूट्स हैव वन और मोर सीड्स इनसाइड देम. और अधिकतम मात्रा में पाए जाने फल वो हैं जिनके अंदर एक या फिर एक से अधिक बीज पाए जाते हैं. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. सीड्स जो बीज हैं वो नए पौधों में उत्पन्न होते हैं. इस प्रकार फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट टू अ प्लांट. जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. एज दे हेल्प इट टू रिप्रोड्यूस, जो उन्हें रिप्रोड्यूस करने में सहायता प्रदान करते हैं. एज यू कैन सी, cauliflower एंड ब्रोकली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर दैट वी ईट. ये सारे ऐसे फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रूट. फ्रूट such as mango, लीची एंड प्लम हैव अ सिंगल सीड इनसाइड देम. ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर केवल एक बीज पाए जाते हैं. फ्रूट सच एज एप्पल, और कुछ फल हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, लेमन, इनमें एक से अधिक मात्रा में बीज पाए जाते हैं. फ्रूट सच एज पोमेग्रेनेट, फल जैसे कि अनार, पपाया, पपीता और वाटरमेलन हैव मेनी सीड्स. इन फलों में बहुत सारे बीज होते हैं. वी ईट द फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट. हम खाते हैं द फ्रूट्स, फल को, ऑफ मेनी प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के पौधों के अलग अलग फलों को हम क्या करते हैं, खाते हैं. नाउ सीड्स. सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप साइजेस. सीड्स जो होते हैं वो अलग प्रकार के शेप साइजेस में और कलर में आते हैं. वी ईट सीड्स ऑफ प्लांट सच एज वीट. हम कुछ बीजों को भी खाते हैं जैसे कि गेहूँ, चना, कॉर्न, राइस एंड बीन. ये सारे सीड्स हैं जिन्हें हम खाते हैं. सच सीड्स आर कॉल्ड एजिबल सीड्स, और इन प्रकार के बीजों को हम एजिबल सीड्स कहते हैं. स्पाइसेस सच एज मस्टर्ड. मसाले जैसे कि मस्टर्ड, सरसों, क्यूमिन ऐड फ्लेवर टू आवर फूड. स्वाद के लिए हम इन्हें अपने भोजन में क्या करते हैं, मिलाते हैं. Now we are going to about germination. When a seed gets the right amount of air, जब किसी बीज को उचित मात्रा में एयर, हवा, पानी और वार्मथ मिलता है, इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. तो वो एक बेबी प्लांट के रूप में उत्पन्न हो जाता है. एंड द प्रोसेस बाई, और उस विधि को, बाई विच अ सीड ग्रोज, जिसके द्वारा एक बीज नए पौधे में उत्पन्न होता है, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं. द न्यू प्लांट नीड्स एयर. नए पौधे को किसकी आवश्यकता होती है, एयर की, वाटर की, लाइट की. कॉन्टिन्यू ग्रोविंग, लगातार कॉन्टिन्यू अपना ग्रोथ, अपनी वृद्धि जारी रखने के लिए एक नए पौधे को पानी, हवा और रोशनी की ज़रूरत होती है. नाउ एज यू कैन सी, दिस इज सीड. व्हेन इट इज गॉट अ राइट अमाउंट ऑफ वाटर, air and light, then it is baby plant, and this is plant, and this one is a perfect plant. From this topic your chapter has completed, and you will do the all exercise of chapter number 7 in your PC copy. When your school will reopen, I will check your PC for your periodic assessment term 2.